Hello, my dear students, good morning. Students, let's start reading the play from page number 44. Okay, we left the play at the last word almost bulge. So, now in this part, as we can see here, the conversation which took place between George and Mrs. Pearson is really very amusing, much funny. George Stout. When George Pearson looked at his wife Annie Pearson and found that she was taking alcohol, she was taking beer, stout, he got really so much surprised and he could hardly believe on his eyes. Okay, that's why he asked his wife whether she was taking beer. Mrs. Pearson, yes. Mrs. Pearson replied in positive, saying it that yes, she was taking. Mrs. Pearson replied in positive, saying it that she was taking beer. George, amazed. Oh, George got badly surprised. What are you drinking stout for? And he asked his wife, what are you drinking stout for? Stands for here. Why she was taking beer? Why she was taking stout? Stout is a kind of beer, alcohol. Mrs. Pearson, because I fancied some. Mrs. Pearson replied, her husband George Pearson, that she had imagined so and she liked it. That's why she had started taking the beer in the day hours. George, at this time of day, George asked his wife that she was taking the beer. Okay, in the broad daylight. Mrs. Pearson, yes, what's wrong with it? At this time of day, Mrs. Pearson asked her husband whether there was something wrong while taking the beer in the day hours. What's wrong with it at this time of day? उसने कहा कि इस वक्त बियर लेना कौन सी गलत बात है. जॉर्ज bewildered. George could not believe what she was telling him, what she was saying. He took each and everything out of his expectation and he got badly confused, extremely confused. George, nothing, I suppose, any, but I have never seen you do it before. George, being so much surprised, being so much confused, puzzled, George firstly told his wife that there was nothing wrong, but he supposed that he had never seen her taking alcohol before in her life. Mrs. Pearson, well, you are seeing me now. Mrs. Pearson told her husband that he was noticing her, he was seeing her taking the alcohol at that moment or not. भाई तुमने पहले कभी मेरे को अल्कोहल लेता हुआ नहीं देखा तो कोई बात नहीं देखा होगा, अभी तो आप देख रहे हो ना मेरे को. जॉर्ज विद हैवी डिस्टेस्ट मीन्स totally unhappily, yes, and I don't like it. George told his wife Annie Pearson, okay, that he had never seen her, okay, taking such kind of thing in her life before, and he did not like it. It doesn't look right, and he also told her, okay, that it was not a good decision as taken by her. इस प्रकार से हमारे घर में दिन के समय में बियर लेना कोई अच्छी बात भी नहीं है. आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तुम्हारे को वास्तव में ये सब देख कर के बड़ा हैरान हूँ. मिसिज पियर्सन, वेल, दैट ought to be a nice change for you. Mrs. Pearson told her husband that it could be a nice change in his nature and behavior if he had got so much surprised. यदि आप वास्तव में ही बेहद रूप से इतने हैरान हो गए मेरी इस तरह की ये सब देख करके, तो आप वास्तव में ही कुछ ना कुछ बदलाव अपने अंदर देख पा रहे हो. जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन? जॉर्ज ने पूछा, तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? जॉर्ज आस्क्ड मिसेज पियर्सन व्हाट शी रियली मीन टू से. मिसेज पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी, जॉर्ज. मिसेज पियर्सन told her husband, saying that it would have been some time since he had been surprised at her. He would have got so much surprise looking at her and taking the alcohol. मिसिज पियर्सन जॉर्ज से कहा
कि जब से तुमने मेरी तरफ हैरानी जाहिर की है तब से कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में चल ही रहा होगा। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेज। जॉर्ज टोल्ड मिसेज पियर्सन दैट ही डिड नॉट लाइक सरप्राइजेज एंड ही वाज टोटली अगेंस्ट सच काइंड्स ऑफ फीलिंग्स। मुझे ये सब हैरान होने की आदत, हैरान हो जाना अच्छा नहीं लगता है। मैं इन सभी बातों से नफरत करता हूँ। आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन मीन सिंपल एंड सोबर मैन। He told her that he was just like a simple and ordinary person. He did not like such kinds of things in his life. You ought to know that by this time means they had been married for so many years, for long years. That's why he told his wife that she must have known about it, that he had always led or followed a very simple life. जॉर्ज ने कहा, मुझे इस प्रकार से ये सब बातें पसंद नहीं है। मैं तो एक साधारण किस्म से जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। अभी तक तो तुम्हारे को इन सभी बातों का ठीक प्रकार से पता लग ही जाना चाहिए था। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी। कहा कि वास्तव में मैं तुम्हारे को आज सुबह ये बताना भूल गया कि मुझे आज आपके अपने घर पर, यानी हमारे अपने घर में आपके हाथ से बनाई गई चाय शायद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपकी चाय नहीं पी पाऊँगा। Special snooker match night at the club tonight. He told her that there would be a special snooker match, okay, that night, the coming night, that night at the club house. Okay, उसने कहा कि आज रात को क्लब के वहाँ बहुत अच्छा एक विशेष स्नूकर का खेल खेला जाएगा and a bit of supper going, and they would also arrange the supper for the invited guests, for the people. इसलिए उसने कहा कि क्लब हाउस के अंदर वहाँ पर संध्याकालीन भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। ओके, सो नो टी, इसलिए मुझे आपके यहाँ चाय पीने की शायद कोई आवश्यकता नहीं आज। मिसेज पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी। श्रीमती पियर्सन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार चाय हमने बनाई भी नहीं है। जॉर्ज, एस्टोनिस्ड, बेटा एस्टोनिश, सरप्राइज, एगॉस्ट, ओके, दीज वर्ड्स आर only for greatly these words represent here, okay, sense of such feelings which go against the man's common belief, means surprised. Astonished means भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। George, astonished, you mean you didn't get any ready? Being so much surprised, George asked his wife, Annie Pearson, if she meant to say that she hadn't prepared any tea for him. Mrs. Pearson, yes. Mrs. Pearson replied in positive, saying that he was totally right. He had really guessed so nice, so well, and a good thing too, as it has turned out. And she also told him that she would not like to prepare tea for them also. George aggrieved. The word aggrieved stands for here, okay, pained, okay, depressed, badly shocked. That's all very well, but suppose I had wanted some. George, okay, George looked so much pained at that time, and he told that that was very well, that she had got a big change in the house, and a good thing too, as it has turned out. It has turned out means all the systems have been totally changed. Now she would not like to prepare tea for any one of the family members. But when George attended such voice, okay, of Annie Pearson, he got a bit pained and shocked, and that's why he told her that that's all very well, but suppose I had wanted some. He got agreed with her, but he again told her that if he had wanted some tea, if he had asked for some tea, then what she would have responded him, what she would have, okay, taken such kind of decision, what kind of decision she had taken against his offer of taking the tea. यदि मान लो मैंने चाय पीने के लिए आपको कह दिया होता तो आप क्या करती? मिसेज पियर्सन का जवाब देखो, माई गुडनेस मीन मी लॉट,
लिसन टू द मैन, हे भगवान इस आदमी की सुनो। Annoyed because I don't get a tea for him, since she had not prepared tea for him, he had got fully annoyed with her. अरे मैंने इसके लिए चाय क्या नहीं बनाई, ये तो मुझसे गुस्से में हो गए हैं। That he doesn't even want, since he does not want to take tea, though he does not want to take tea, thereafter he has got so much annoyed. Ever tried that at the club? Mrs. Pearson asked her husband whether he had ever tried such kind. He had ever tried that the formula of getting tea at the club or not, at the club house or not. क्या आपने कभी इस प्रकार से क्लब के वहाँ बैठ कर के चाय मांगने के लिए कभी प्रयास किया है? जॉर्ज ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या कहा तुमने? क्लब के ऊपर मैंने कौन सी चीज़ का प्रयास किया है? मिसिज पियर्सन गोइंग अप टू द बार, मधुशाला होता है। ओके, गोइंग अप टू द बार, अ प्लेस वेयर पीपल सिट टुगेदर एंड टेक द अल्कोहल, एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर बट यू आर annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. मिसिज पियर्सन कहते हैं गोइंग अप टू द बार, आप तो हमेशा उस मधुशाला में जाते रहते हो। एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, और आप मधुशाला में जाकर के उन लोगों के कहते रहते हो कि मुझे भाई अभी एक गिलास बियर का भरा हुआ एक गिलास मुझे नहीं चाहिए। बट यू आरंट एनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पॉर्ड इट आउट, लेकिन तुम उस वक्त गुस्से में नहीं होते हो जब वे लोग तुम्हारे गिलास के अंदर बियर पहले से भर कर के नहीं रखते हैं तुम्हारे लिए कि भाई जॉर्ज पियर्सन आएगा, चलो उसके लिए गिलास में बियर पहले से भर कर रख देते हैं, कहीं मांग लेगा और उस वक्त यदि उसको वो चीज़ नहीं मिली तो गुस्से में हो जाएगा। ट्राई दैट ऑन दैम, जरा इस बात को उनके ऊपर आजमाइए। एंड सी व्हाट यू गेट, और फिर देखना तुम्हारे को क्या जवाब मिलता है। जॉर्ज आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जॉर्ज टोल्ड हिज वाइफ दैट ही डिड नॉट नो व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वांटेड टू से टू हिम, जो कुछ तुम मुझे कहना चाहते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिसेज पियर्सन दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। मिसेज पियर्सन कहती है कि जब तुम उनसे इस प्रकार से पूछोगे तो वे तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा हंसेंगे, तुम्हें पागल समझ करके, तुम्हारे को मूर्ख समझ करके बहुत ज़्यादा हंसेंगे। जॉर्ज इंडिग्नेंटली, ओके, इंडिग्नेंटली स्टैंड्स फॉर एयर, नॉट ऑनरेबली, रेस्पेक्टफुली बट डिसरेस्पेक्टफुली, लॉफ एट मी, थोड़े से डिसलाइक्ड फॉर्म में बोलते हुए, क्या कहा तुमने? वे लोग मुझ पर हंसेंगे। जॉर्ज आस्क्ड मिसेज पियर्सन वेदर शी वांटेड टू से दैट द पीपल वर्किंग एट द क्लब वुड स्टार्ट लाफिंग एट हिम। दे डोंट लाफ एट मी, ही ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट दे नेवर लाफ्ड एट हिम, वे मुझ पर कभी हंसते नहीं हैं। मिसेज पियर्सन ऑफ कोर्स दे डू, मिसेज पियर्सन कहा रहे तुम्हें पता तो कुछ है नहीं, तो हमेशा तुम पर हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड, तुम्हारे को इस बात का अभी तक पता लगा लेना चाहिए था, दैट आउट बाय दिस टाइम, अभी तक तो तुम्हारे को इस बारे में पता लग जाना चाहिए था कि वे लोग तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाते रहते, तुम पर हंसते रहते हैं। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो निश्चित रूप से इस बारे में उसको इस बात का आभास हो जाता, तुम तो पागल हो। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम तो खड़े मजाक जो करते हैं उन खड़े मजाकों वाले, सबसे ज़्यादा मजाक किए जाने वाले व्यक्ति में से तुम एक व्यक्ति उनके लिए फेमस, तुम तो बड़े प्रसिद्ध हो। दे कॉल यू पोम्पी ओम्पी, वे तुम्हारे को पोम्पी ओम्पी कहते हैं, पियर्सन कहते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पोम्पस, क्योंकि उनको पता है कि तुम बड़े ही आलसी हो और बड़े ही दिखावटी व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा अपना दिखावा करते रहते हो। जॉर्ज हॉरिफाइड नेवर, जॉर्ज थोड़ा घबराते हुए, डरते हुए, नहीं कभी मैंने ऐसा सुना ही नहीं उनके मुख से, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मिसेज पियर्सन इट्स ऑलवेज बीटन मी, इट हैज़ ऑलवेज बीटन मी, वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर always laughing at you behind your back and calling your names. Mrs. Pearson told her husband that she was always grieved, thinking that her husband was being so much insulted and humiliated by the people living at the club, and they were always making practical fun of him and his characteristics. So why he was going? Why her husband was going to that place where he got no respect? Leaving your wife at home after night after night, and she also blamed him, saying that he never took his wife, okay, to that place with him, and he always left his home night after night
and he never cared for his wife's words also. Instead of going out with her, who does not make you look a fool. If he had gone with his wife, if he had gone with her, उसका कहने का भाव ये था कि यदि तुम मेरे को साथ लेकर के जाते, she would have surely saved him from such kinds of jokes, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे को उन सभी व्यक्तियों के इस प्रकार के मजाकों से तुम्हारे को बचा लेती. Cyril enters right with a glass of milk in one hand. Meanwhile, Cyril Pearson, who is the son of Doris Pearson, who is the son of Annie Pearson and George Pearson, okay, appears there before them with a glass of milk in one hand. अपने एक हाथ में एक दूध का गिलास भर करके वहाँ पर आता है, and a thick slice of cake in the other, and in the second hand, okay, he possesses a thick slice means piece of cake in his other hand. ठीक है. Almost dazed, he is almost dazed. Dazed means surprised. Turns to him appealingly. Appealing means requestingly. When Cyril Pearson appears, his father and mother. So at that time he is having a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other hand. Okay, George almost dazed. So when George looks at his face, he gets so much surprised, and then he turns to him requestingly. He wants to ask something from his son, okay, regarding his so much depression and expressionless face, facial expressions, expressionless face. जॉर्ज, हेयर सीरियल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस. जॉर्ज ने कहा कि अरे सीरियल, तुम मेरे साथ उस क्लब के अंदर एक बार दो बार, कम से कम एक दो बार तो अवश्य मेरे साथ गए हो. दे डोंट लाफ एट मी. अब मुझे आप एक बात बताओ कि क्या वे लोग मुझ पर हंसते हैं. एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, और क्या मुझे इस प्रकार से पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह करके चिढ़ाते हैं, मेरा नाम लेते हैं. डू दे, क्या वे उससे करते हैं. सीरियल एम्बेरेस्ड, असेम्ड, थोड़ा सा घबरा जाता है, घबराहट चढ़ जाती है. सीरियल घबराहट के साथ में हेजिटेट्स, थोड़ा हिचकिचाता है कि मैं कहूँ कि ना कहूँ पापा के बारे में कुछ. एंगरली एंड, बड़े गुस्से से भर कर के. गो ऑन टेल मी, जॉर्ज बड़ा गुस्से से भर कर कहता है, ए डोंट बी साइलेंट एंड टेल मी व्हाट आई हैव आस्क्ड यू. मैंने जो कुछ तुमसे पूछा उसके बारे में बताओ. डू द पीपल वर्किंग एट दैट क्लब एवर लाफ एट हिम. सीरियल एम्बरेस्ड अगेन, गेटिंग सो मच असेम्ड, बहुत ज़्यादा शर्माते हुए. वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू. ही disclosed the matter, saying that the people working at the club where he often visited really made practical joke with him, and they also laughed at him every time. आगे पापा, वास्तव में वे लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हारे को पोम्पी ओम्पी कह करके पुकारते हैं. जॉर्ज slowly looks from one to the other, staggered. George Pearson gets so much depressed, shocked, and he starts looking from one side to another side, and he could not speak a single word. He remains totally silent. George slowly, well, I will be damned, and he started scolding himself. He started scolding himself, calling that he was not really a good man, and he said some offensive word to himself. उसने अपने आप को बुरा भला कहना शुरू किया. डैम्ड का मतलब अपने आप को बुरा भला कहने के लिए, और थोड़ा जैसे कि कह देते हैं ना, स्कोल्ड करना, कर्स करना. ही स्टार्टेड कर्सिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अभिशाप देना, बुरा भला कहना शुरू किया कि अरे मैं इतना नालायक हूँ कि मैं इस प्रकार से वहाँ जा कर के अपनी बेइज्जती करवाता हूँ, मुझे वहाँ जाना छोड़ देना चाहिए. ओके बेटा, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी अटेंडेड बाई एस. ओके, ओनली द 3 to 4 lines are still left. George exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head. George आराम से, बड़े धीरे धीरे बाई तरफ वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है, जैसे कि मानो किसी व्यक्ति ने उसके सर के ऊपर कोई चोट मार दी हो. सीरियल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, जब सीरियल अपने पिता को बाहर की तरफ जाता हुआ देखता है तो उसके आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेज पियर्सन, बड़े ही एक डिसरेस्पेक्टफुली भाव से, बगैर किसी सम्मान के साथ में, तुच्छता के साथ में, तुच्छ भाव के साथ में, और वो अपनी मम्मी श्रीमती पियर्सन की तरफ देखता है. सीरियल, नव यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट
अरे मम्मी तुम्हें पिताजी पापा को ये सब बातें भी नहीं बतानी चाहिए थी मम, दैट इज़ नॉट फेयर, ऐसा बताना ठीक नहीं होता है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइंड टू। मम्मी ऐसा कह करके तुमने पापा की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी कभार तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी बहुत अच्छा रहता है। द ट्रूथ अट नॉट टू हर्ट एनी बॉडी फॉर लॉन्ग। सच्चाई जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, यदि तुम्हारे पापा उस क्लब में इतने ज़्यादा बार बार फ्रीक्वेंटली यदि बार बार वो नहीं जाते रहते, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वो अभी तक तुम्हारे पापा का मजाक करने से अपने आप को रोक लेते, क्योंकि तुम्हारे पापा बगैर बताए वहाँ पर लगातार जाते रहते, तो इसलिए उन लोगों को उनके साथ मजाक करने का आदत पड़ गई है। सीरियल ग्लूमीली सैडली आई डाउट इट एंड सीरियल पियर्सन टेल्स हिज मदर दैट ही did not say anything regarding that matter and he got suspected। कहा कि मामा मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है, आप क्या कहने लग रही उसको लेकर के, और बड़ा निराश दिखाई देता है उस वक्त। ओके, नाउ द पेज नंबर 46 से लेकर के बेटा और आगे के जो पेजेज है उनको हम कल अटेंड करेंगे। कल 1 घंटे का आपको लेक्चर देंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू।